Good morning, students. Welcome back again. Chapter number 9, the living organisms and their surroundings. This chapter we are learning. In the previous video, I have explained you about the two type of systems. First था हमारा excretion system and second one is a reproduction system. And I also cleared you about the two characteristics of living organism. That first one is all living things need food and second one is all living things show their growth. All living thing की सबकी growth होती है. Just recall about the two system, that is reproduction and excretion. Reproduction is a process in which living beings produce their young ones. जिसमें हम लोग young ones produce करते हैं, उस process को हम लोग reproduction बोलते हैं. And all living things reproduce. जितने भी living things हैं वो सब reproduce करते हैं. Like human beings also, animals also, and plants also. I have explained you that plants are reproducing from the seed. Plants reproduce कहाँ से seeds से होते हैं. And some plants are usually like that कि वो reproduce बिना seeds के भी हो जाते हैं, right? So this was definition of reproduction. Now about excretion. What is the meaning of excretion? See, we are eating food, right? तो जितना food खाया अब तो सारा digest नहीं होगा वो. The food which you have eaten पूरा complete digest नहीं होगा. The undigested food in the body. The food is not digested by the body. वो हमारी body की form में से बाहर निकल जाता है as a form of waste. इस process को हम excretion बोलते हैं. I am repeating again. The food which you are eating जो complete digest नहीं होता है, the undigested food of the body which comes out in the form of waste is known as excretion. Okay, now today we are going to learn about a third topic, that is stimuli. This is a new definition. 4 definitions I have told are there in this chapter: adaptation, reproduction, excretion, and this is stimuli. Now what is the meaning of this? First of all, let's see the definition. Changes in our surroundings. Changes in our surroundings मतलब surroundings तक you know हमारे आजू बाजू में होता है जो changes in our surrounding that make us respond to them are called stimuli. हमारे सराउंडिंग में चेंजेस होते हैं और हम लोग भी अपनी हैबिट्स उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो उसको बोला गया है स्टिमुली. फॉर एग्जांपल, सपोज एनीवन इज टेलिंग मी टू गो एंड सेटल एट राजस्थान, ठीक है, तो मेरा सराउंडिंग चेंज हुआ. यस ऑफ कोर्स, बिकॉज सराउंडिंग्स व्हिच आई एम हैविंग राइट नाउ तो वो सेम एज इट इज मुझे वहां पे राजस्थान में नहीं मिलेंगे. तो दिस इज सर चेंजेस इन माय सराउंडिंग्स. ये मेरे सराउंडिंग्स में चेंजेस हो गया. दैट मेक अस रिस्पॉन्ड, तो मेरी एक्टिविटी होगी. दैट हैबिट्स व्हिच आई एम having here, तो मेरी एक्टिविटी सारी वहाँ पे वो चेंज हो जाएगी. Now I am taking example of Himalayas, ठीक है. someone is telling to go in mountain regions. The breathing rate which we are having right now, यहाँ पे जो है breathing rate, it's a normal, but you know when we climb higher mountains, तो ऑक्सीजन जो हमारा रेट होता है रेस्पिरेशन का वो इंक्रीज हो जाता है. The oxygen rate इंक्रीज होगा because माउंटेन्स पे ऑक्सीजन की लेवल कम होती है, इसके लिए हम लोग ब्रीथ बहुत फास्ट करते हैं. तो वो क्या मैंने चेंजेस हुआ. क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज माई सराउंडिंग्स चेंज्ड. मेरी सराउंडिंग चेंज हो गई, इसके लिए मैंने रिस्पॉन्ड किया. तो आर कॉल्ड स्टिमुली. उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुली बोलते हैं. सो राइट दिस डेफिनेशन इन योर नोटबुक. चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली. ओके, so here for these topics, which 4 important definitions which are there in textbook, I have completed: adaptation, reproduction, excretion, and the stimuli. Now moving forward to characteristics of living organism. Characteristics of living organism. 2 I have completed, that all living things need food, and second I have completed that living things show growth. Now today our third point is living things respire. Living thing respire. This is our third characteristics which we are going to learn today. Living thing respire. अब now what is the respiration? Respire means what? Respiration means to breathe in. Respiration का मतलब होता है to breathe करना. Respire मतलब to breathe. तो living things yes respire, हम लोग breathe करते हैं. So what we are breathing? We are breathing oxygen, and what we are exhaling? We are exhaling carbon dioxide. Now from where we are getting this oxygen? Yes, of course we are getting oxygen from the plants only. But still what people are doing, still we are doing only deforestation.
स्टिल वी आर नॉट काइंड टू द ट्रीज, अभी तक हम लोग ट्रीज को कट करना नहीं छोड़ते, वी आर कटिंग डाउन द ट्रीज ड्यू टू आवर सेल्फिश रीजन, हमारे सेल्फिश रीजन की वजह से हम लोग ट्री को कट करते जा रहे हैं। तो व्हाट इट विल इंक्रीज द पॉल्यूशन एंड इट विल आल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ डिजीजेस। तो अभी रिजल्ट हमको दिख ही रहा है, मैनी डिजीज आर कमिंग डे बाय डे। तो क्यों? बिकॉज हमारे यहाँ पे ट्रीज बहुत हम लोग कम करते जा रहे हैं ड्यू टू आवर सेल्फिश रीजन ओनली। तो वी हैव टू डू अफॉरेस्टेशन, हमको ट्रीज नहीं कट करने चाहिए। सो हम यहाँ पे रिस्पायर पे थे, तो हम रिस्पायर ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं और हम लोग एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाउ प्लांट्स आर आल्सो रिस्पायर, प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं, उनको भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, दे आर आल्सो ब्रीथिंग O2 एंड दे आर आल्सो रिलीजिंग CO2। बट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस when plants are preparing their food during the process of photosynthesis, so they need CO2 means carbon dioxide which we are releasing, तो उनको वो चाहिए होता है because वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। plants are that kind of living organism that they are preparing their food by themselves, वो अपना खाना खुद ही बना देते हैं। तो what they need CO2 with CO2 which we are releasing, और वो तभी उसको ऑब्जर्व करते हैं सिर्फ when sunlight is present, जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तभी, बिकॉज प्लांट्स आर प्रिपेयरिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली। तो सनलाइट होती है तो वो CO2 भी हम जो हम रिलीज करते हैं वो लोग ऑब्जर्व करते हैं फॉर मेकिंग देयर फूड। नाउ यू आर थिंकिंग सर ह्यूमन बीइंग्स तो ब्रीथ कर रहे हैं, वी आर हैविंग नोज, प्लांट्स ब्रीथ कर रहे हैं, आपने बताया जैसे हमको, बट हाउ द अदर एनिमल्स, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ब्रीथिंग इफ दे आर नॉट हैविंग लंग्स लाइक अस। अब इसी एनिमल्स होते हैं काउ, बफेलो, बर्ड्स, दे आर आल्सो लंग्स प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी एज सेम लाइक ए ह्यूमन बीइंग। तो हमको चेस्ट कैविटी में लंग्स प्रेजेंट है, ब्रीथिंग में हेल्प कर रहे हैं, तो उनको भी ब्रीथिंग में वो हेल्प करते हैं। बट व्हाट अबाउट दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हु आर नॉट हैविंग द लंग्स लाइक अर्थवर्म, कॉकरोच, दे आर नॉट हैविंग लंग्स, तो फ्रॉम वेयर दे आर ब्रीथिंग? सो कॉकरोच इंसेक्ट जो होते हैं, उनकी तरह इंसेक्ट, दे आर हैविंग अ टिनी होल्स ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी पे टिनी होल्स प्रेजेंट होते हैं। आप जैसे पिक्चर में देख ही रहे हो कि टिनी होल्स उनके यहाँ प्रेजेंट है। तो इन टिनी होल्स को बोला गया है स्पिरिकल्स, दीस टिनी होल्स आर नोन एज स्पिरिकल्स। इन स्पिरिकल्स के थ्रू इनकी ऑक्सीजन जो होती है वो अंदर जाती है। तो उनको लंग्स नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वो ब्रीथ नहीं कर रहे हैं, दे आर ब्रीथिंग थ्रू द टिनी होल्स व्हिच आर प्रेजेंट इनकी बॉडी के पास प्रेजेंट है, दैट आर नोन एज स्पिरिकल्स। अर्थवर्म, यू आर सीइंग द पिक्चर ऑफ अर्थवर्म, अब आपको दिख रहा होगा अर्थवर्म को लंग्स तो वहां पे है ही नहीं, अर्थवर्म इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ लंग, तो कहां से ब्रीथ कर रहा है? तो अर्थवर्म इज ब्रीथिंग थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन, उनकी स्किन ऐसी होती है मॉइस्ट, और उनकी मॉइस्ट स्किन से वो लोग ब्रीथ करते हैं। अब नाउ थर्ड एग्जांपल आई एम गिविंग फिश, आपको फिश दिख रही होगी, तो फिश भी उनको लंग्स नहीं है, तो कैसे ब्रीथ कर रहे हैं? तो फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, मींस अलग all kind of organisms are breathing and the way of breathing of all organism is different। ऐसा नहीं जिनके पास lungs है वो ही सिर्फ breathe करेंगे, नहीं, the animals which are not having lung like cockroach, earthworm, fish, they are also breathing but the way of breathing is different। So I hope you understood about this topic, that living thing respire। Now moving forward to the fourth characteristic of living thing, our fourth now is living organisms and excretion, living organism and excretion। living organisms and excretion, this point you clearly know because I have explained just now only that what is the meaning of excretion। एक्सक्रीशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारी बॉडी का, हम लोग उसको वेस्ट के फॉर्म में बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट करते हैं। व्हाई? बिकॉज इफ विल नॉट, हमारा बॉडी का वेस्ट अगर बाहर नहीं आएगा तो नंबर ऑफ यूरिक एसिड, नंबर ऑफ यूरेटा विल इंक्रीज इन अवर बॉडी, और हमको बॉडी को वो सिक बना देंगे। ये नाम जो है these will the name will come in a higher grade, but then also I'm explaining you for a better understanding। एक्सक्रीशन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज यू हैव ईटन टू मच फास्ट फूड, आपने बहुत सारा फास्ट फूड खा लिया, तो आपको स्टमक पेन हो रहा है, बट समटाइम व्हेन यू आर गोइंग, तो आपका जो रिलीज वेस्ट है वो नहीं हो पाता है प्रॉपरली। तो प्रॉपर जब तक रिलीज आपका वेस्ट नहीं हो रहा है बॉडी में से, तब तक आप यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, राइट और रॉन्ग, तब तक हम लोग कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाई
एक्सक्रीशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है एक्सक्रीट करना। अगर हम प्रॉपर एक्सक्रीशन हमारी बॉडी का नहीं होगा देन वी विल नॉट फील कंफर्टेबल एंड वी विल फील सिक। हमको ऐसा लगेगा हम लोग बीमारी हैं एंड हमको स्टमक पेन जो होता है पता है आपको, ठीक है। तो एक्सक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डोंट ईट टू मच ऑफ फास्ट फूड, eat a proper balanced diet. Now the third characteristic I am explaining, that is very easy, that you have learned from a lower grade. Living thing living things move. बहुत easy topic है तो living things move. Yes, of course, all the living things are moving. All the living things are moving from one place to another place. Okay, animals are also moving, but the way of some animals is different. See, some animals are walking, some animals are flying, some are slithering. कोई slithering कर रहा है, कोई jumping, कोई walking, running. The gait of animals which you have studied in your chapter number 8, gait of the animals. The manner in which organism move from one place to another place, it is known as their gait. तो animals के gait होते हैं, they are of different type. Walking भी हो गया, running हो गया, flying, slithering, swimming. These are the different type of gaits which animals are having. But for human beings हम लोग सिर्फ वॉक कर सकते हैं एंड रनिंग कर सकते हैं, हमारा और कोई गेट नहीं है। आपने देखा है किसी ह्यूमन बीइंग को स्लिथर करके चल रहा हो वो ग्राउंड पे? नो। तो ह्यूमन बीइंग्स आर ओनली वन गेट, रनिंग तो नहीं बोल सकते हम, वॉकिंग इज ओनली वन गेट। और लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं, उनके डिफरेंट टाइप के गेट्स होते हैं। तो यस, ऑल द लिविंग थिंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय देयर ओन। So I hope today you understood about this definitions strictly and about the three characteristics that living thing aspire, living organism and excretion, and living thing can move. So whatever doubt if you are having related to this video, you can ask me during online session. Thank you and have a nice day.